खा के इसको ठीक नहीं कर सकता या नहीं कर सकती. I have to start moving towards solution and not temporary fix. Yes or no? Good. Another way where the body goes poor is that we have low muscle mass. कि हमारी बॉडी के अंदर atrophy of muscles हो जाती है. Whenever we are having cancer or something, हमारे अंदर बॉडी जो है वो एट्रोफी करने लग जाती है, मतलब हम मसल मास लूज करने लग जाएंगे. उससे क्या होगा? योर पॉस्चर विल गो बैड. आपके अंदर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. आपको उठने बैठने में भी सपोर्ट लेना पड़ेगा उठने के लिए. आपको पता नहीं लगेगा, पर आपको लगेगा कि आपको बैलेंसिंग में इश्यू आ रहा है. आपको लगेगा कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पेन चलता ही जाता है. मैं अगर ज्यादा चलता हूँ या चलती हूँ तो मेरे नीज में पेन आने लग जाता है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज हमारी मसल मास जो है, बिकॉज ऑफ द कैंसर, इट स्टार्ट्स टू लूज. एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू डू व्हाट? वी नीड टू डू व्हाट? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. यस, इफ वी आर नॉट डूइंग, हम अगर वेट्स नहीं कर रहे, कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहे और हम सोच रहे हम वॉक कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे, योगा कर लेंगे और उससे हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप एक छोटा सा पार्ट कर रहे हैं अपनी हीलिंग जर्नी का. और यहाँ पर मैं सिर्फ आपको पेन हटाने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ. वेयर यू कैन लिव अ पेन फ्री लाइफ व्हिच इज वेरी पॉसिबल. आर यू विद मी? यस और नो? So these things are very important and you have to start thinking about this already before it is a lot more late. Okay, good. Now before moving forward, I would like to just introduce myself if you are okay. Good. First of all, I would like to thank everyone that you have taken the time out to be here on a Sunday morning. आप कहीं भी हो सकते थे, आपके घर में. I know it's a family time for everyone on Sunday, and everybody has breakfast together and things are going on, and you have taken a step forward to be here on this day to do something for yourself. So first of all, I would like to thank you, each and every one of you who's listening to me right now, because I appreciate and acknowledge that you are doing something about yourself, which is the most important part. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करना है, तो आपको उससे पहले अपना ध्यान देना है. You can only put water in somebody else's glass when your glass is full. Yes or no? Yes, good. So आप अपना ध्यान पहले दें, उसकी तभी आप किसी और, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का ध्यान दे पाएंगे. And especially when you need more attention, you need more healing. So you have to, without a guilt, put yourself first. Yes? Good. Just to take 2 minutes, my name is Dr. Akshay Arora. I am a physiotherapist and a holistic health coach. I'm the co-founder of Kinetic Physiotherapy. I've been into practice for more than 15 years. मैं एक licensed physiotherapist हूँ UK से. मैंने अपनी masters UK से करी है. And I've been helping cancer patients for last more than 15 years now. And I've worked with the best of the oncologists there are, and I've got an opportunity to work more than thousands of patients who have had cancer, and I've helped them after their chemotherapy journey, before they're having their surgery, having to help them strength training के लिए, उनकी energy levels के लिए, उनकी fatigue के लिए, and this is what I've been doing for so many years. So it is my real honor to be here to be able to help you guys today. Okay, that is just a brief introduction about me. Before we move forward, I'm going to share my screen again so that you understand what we are going to do today. I'm going to provide you 3 solutions. 3 solutions to live an active, pain-free life. Who's ready? Show of hands, who's ready? Yes? Good. So the 3 secrets is the first we talk about is the mind. The mind is the most important part. Why? Because if I'm not having a right mindset, मेरे अगर माइंड के अंदर लो एनर्जी चल रहा है, मेरे माइंड में हमेशा लग रहा है कि मेरे पास तो एनर्जी है ही नहीं इस काम को करने के लिए, एंड आई एम ऑलवेज फोकसिंग कि मुझे तो पेन हो रहा है, मेरी एनर्जी लो है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ. तो ऑलरेडी द माइंड इज प्लेइंग अ लॉट already with us. Yes or no? How many of you can agree? Yes?
So what needs to change? We need to change the first bit, which is the mind itself. So हम आज कैसे फील कर रहे हैं, हम उसको बदल सकते हैं. Can you imagine? आज हम कैसे फील कर रहे हैं इस मोमेंट में, हम उसको बदल सकते हैं. और पहली एक्सरसाइज हमारी उसी को लेके है. Are you ready, guys? Good. So I want all of you to close your eyes, take a deep breath, and I want you to realize what you are actually feeling right now. Okay, I want you to feel. Close your eyes and take a deep breath and tell me how you are feeling energy-wise. If 100 is the maximum, I definitely know Sanjeev ji is not. So we are going to change. We are going to change that for him. Okay. Maximum energy. How you are feeling the body's energy right now? And everybody should put a number to it. Okay. Can you put that number in the chat box? Okay. Put that number in the chat box. If 100 is the maximum energy. If 100 is the maximum energy, how energetic you are feeling right now on a Sunday lazy morning? Because we would like to change that for you. Good. Yes. Good. Just put the number because this is an interactive session. If you don't play along, so I'm waiting for your answers. Take few seconds. Put in the chat box. Good. So he says 75 है, 60 है राकेश जी के लिए. Abnita ji ke liye less than 50 hai. Okay, good. So now what we are going to do is everybody should stand up. Come on, stand up. We're going to do something very unique. Come on, stand up. Good. I want you to put your hands up. Good. I want you to put your hands up and stretch them out completely. When you bring it down, I want you to say yes. Okay, are you with me? Because yes, we want a pain-free life. Are you with me? Yes or no? We are going to do it 10 times, and every time we bring it down, we are saying yes to a pain-free life. Yes or no? Good. So when we bring it down, we need to breathe out. We need to breathe out like this. Can you do it with me? One time. We need to breathe out. Okay? Hands up. Let's start. Okay? Take it up and say yes. Yes, and breathe out. Take it up and bring it down and say yes. Breathe out. Take it up. Yes, and breathe out. Take it up. Yes. Breathe out. Take it up. Down. Yes. Breathe out. Good. Take it up and breathe out. Good. Take it up and breathe out. 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 Take it up, breathe out. Take it up, breathe out. We're going to do 10 more times, but we're going to do it fast. Okay? 10 more times. Come on, breathe out. Faster. Good. Come on, let's sit together. Give a big round of applause, everyone. Give a big round of applause for yourself. Good. I want you to close your eyes again. Now what we have done, we have changed the state of your body through sound and movement. That is the secret. If you change, it will bring a change. Close your eyes, take a deep breath and tell me how do you feel with energy, and write it down again in the chat box. How you were feeling before, or कैसा feel great. How many of you felt great? Show of hands. Automatically, when you're breathing, you're doing sound and movement, automatically, you'll start feeling more energy in the body. All we have done is
Sound and movement is the secret. If you do sound and movement, it takes 1 minute and it shows such a great difference in your body. Yes or no? Show me a thumbs up, yes or no? So all of these things plays huge role and it's very simple. But we are not doing that. Why? This takes 1 minute to change how we are feeling about us. So we have to start coming to a point कि हमें अपने बारे में सोचने की हमें कैसा फील हो रहा है और हम सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके और मूवमेंट करके साउंड करके ऑटोमेटिकली हम अपनी बॉडी का एनर्जी ऊपर कर सकते हैं. एंड बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि सिर्फ इसको करने से सिर्फ एनर्जी ऊपर नहीं हो रही, इम्यूनिटी ऊपर हो रही है. इसको करने से सिर्फ पेन कम नहीं हो रहा, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, आपको ऑक्सीजन और मिल रहा है, आपका हीलिंग रिस्पॉन्स और बढ़ रहा है. तो आपको लगता है ये क्या है, इतना सिंपल चीज है. नहीं, 1 मिनट का साउंड और मूवमेंट, इससे क्या होगा? But you are not thinking in the right direction, because I'm telling you, I've been working with my patients for more than 15 years, and simple things in life like this, consistency से करेंगे, so it makes a huge difference to the body. Yes, give me a thumbs up if you feel that. Good. Yes, so we want to move to the next step is with the body. Yes, so body के अंदर lot of time there is movement and there is tightness in the body. Yes, हमारी body में how many of you feel tight? Body के अंदर लगता है अरे बहुत tightness feel होता है, stiffness feel होता है body के अंदर. How many of you feel that? Show of hands. Do you feel stiff in the body sometimes? Yes, feeling in the neck, feeling in your shoulder. नेक के अंदर लगता है मूवमेंट कम आ रहा है. यस और नो? इससे आपकी नेक की मूवमेंट और आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा. यू विल फील रिलैक्स इन योर नेक. ओके, उसको करने से पहले हम एक प्री टेस्ट करेंगे नेक के लिए. सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सीक्रेट. हाउ कैन यू टेक pain free life through is movement of the body. Yes, movement of the body in flexibility and removing stiffness. So how do you do that? Move the neck on the right side, take it on the right side and just feel कि कितना फील हो रहा है नेक में, कितना स्टिफनेस फील हो रहा है शोल्डर में. यस, उसके बाद हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और कौन सी साइड ज्यादा जा रही है और कौन सी कम जा रही है. कैन यू सी दैट? Okay, good. Now what we have to do, first tell me which side is more stiff for you. If you have the right side, you do this side, raise this hand. If you have the left side, you raise this hand. Which side is more stiff for you? Tell me. Just observe which side is more stiff, right one or left one. Show of hands. कौन सी साइड ज्यादा stiff है? Good. So once you know, we can move it to the exercise. Okay. So now what you have to do is you hold your ears like this and you have to roll it back. कितना simple exercise है. Pull करना है और पीछे की तरफ roll करना है. Now you might find this funny, but it is very effective. हम इसको fascia work बोलते हैं कि हमारी मसल्स के ऊपर एक लेयर होता है, उसको बोलते हैं fascia. हम उसको इस वक्त रिलीज कर रहे हैं. इसको ऊपर करके खींच के पीछे की तरफ करना है. Seconds, then bring it little down, पीछे की तरफ रोल करना है. इससे आपके ईयर में थोड़ा पेन होगा, ईयर थोड़ा रहेगा, which is all normal. ठीक है, पीछे की तरफ रोल करना है. Take it up और पीछे की तरफ रोल करना है. So this will help you to open the neck stiffness. ठीक है, नेक के अंदर जितना भी स्टिफनेस फील हो रहा है वो अपने आप कम होने लगेगा. We have to do this for how much? 1 minute. Okay, 1 minute तक we have to pull and rotate, pull and rotate, pull and rotate. Good. Now take a deep breath. Take a deep breath. And I want you to check it again. Okay. Now check the neck movement again.
and you will find कि neck के अंदर जो stiffness थी, now the neck is moving a lot more better, it's lot more open. Yes or no? Thumbs, show me thumbs up. Yes or no? This guys, this is like magic. Okay, as simple as छोटी सी चीज है, सिर्फ ईयर को पकड़ के पीछे घुमाना है और आपकी नेक की स्टिफनेस गायब. How powerful is this? If you imagine, if you know this, and it is so simple. That is what I do with my cancer patients, okay? क्योंकि मुझे पता है कि उनमें इतनी हाई एनर्जी नहीं है बड़े बड़ी एक्सरसाइज करने की. मुझे पता है कि वो डंबल नहीं उठाना चाहते पहले दिन पे, और मुझे पता है कि उनको बहुत पेन है नेक और शोल्डर्स में. तो मैं उनको सिंपल छोटी छोटी चीज सिखाता हूँ स्टार्टिंग में, जिससे उनको पहले एक डिफरेंस पता लगे, उनको एक्चुअली एक्सपीरियंस हो कि उनकी नेक कितनी फ्री हो गई सिर्फ 1 मिनट के अंदर. And I tell these all of my clients कि आपको हर बार फिजियोथेरेपी करने की जरूरत नहीं है. आप मेरे से एक्सरसाइज सीखिए और खुद से घर पे कर ले. लेकिन क्या जरूरी है? करना जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है. यस और नो? गुड. लॉट ऑफ पीपल से कि भाई मुझे वेट्स नहीं उठाने. मैं कहता हूँ वेट से पहले आप अपनी बॉडी का वेट उठा लीजिए. अगर आपको वेट्स उठाने का मन नहीं है तो सिंपल एक्सरसाइज फॉर शोल्डर. विल डू वन मोर and you will be surprised. Okay, so I want you to extend your hands like this, everybody. ठीक है, extend कर लीजिए. Back straight, neck straight. You want to move more back. Okay, now what you have to do is just flap your hands like this. Okay, small movements. Flap your hands like this. Now I am counting, and you can imagine, can you do it for at least 50 times only? This is 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. How many of you have already pain in your shoulders that your muscles are working? I can see on your faces. You are already getting tired with it. Yes? This is 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Good. Stop. How many of you are feeling your shoulders? Yes or no? इसके लिए क्या हमें डंबल की जरूरत पड़ी? इसके लिए क्या हमें वेट की जरूरत पड़ी? क्या इसके लिए हमें फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना. तो क्या आप ये चीजें आप खुद से नहीं कर सकते? कर सकते हैं. क्या आप कर रहे हैं? So this is very small things, but even these movements are going to bring your muscles, कि आपकी muscles के अंदर circulation better हो जाएगा. You will feel more better with your muscles. आपकी muscles को थोड़ा workout मिला, exercise मिला, circulation better हुआ. उससे क्या होगा? Immunity बढ़ेगी. उससे क्या होगा? Healing बढ़ेगी. उससे क्या होगा? Pain चला जाएगा. उससे क्या होगा? You will be able to do whatever you want in life. Yes or no? क्या आप ये सब कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता है कि क्या स्पेसिफिकली करना है, कैसे करना है. So you can take always help of physiotherapist, or if you know what to do and how to do and it is giving you results, आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप करते रहिए. But this is so simple, no? Yes or no? Good. So all of these things are very, very important. एक और मैजिक करें रोटेशन के अंदर. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस, बिकॉज मैंने आज क्या फोकस किया आपके लिए कि हमने नेक की जो अपर स्पाइन है उस पे काम किया. अब हम मिडल और लोअर पे करेंगे जो कि रोटेशन है. ओके, दिस इज वन मोर एक्सरसाइजेस आई वांट टू डू. सो आई वांट एवरीबॉडी टू सिट एंड जॉइन योर फीट एंड नीज टुगेदर. कीप योर बैक स्ट्रेट एंड कीप योर हैंड्स लाइक दिस. ये भी एक मैजिक है. इफ यू विल डू इट नाइसली विद मी, अगर आप मेरे साथ अच्छे से देख के करेंगे तो ये एक और मैजिक है आपको मिलेगा. आई गारंटी यू दैट. आर यू रेडी फॉर मैजिक? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? सिर्फ रोटेट करना है और देखना है कि आप इस तरफ पे क्या देख पा रहे हो, कितना रोटेट कर पा रहे हो ऑन द राइट. जब आप ये कर रहे हैं आपकी जो नीज है, नीज विल बी जॉइन टुगेदर. ओके, नीज को जॉइन करके रखना है और रोटेट करना है और देखना कितना जा पा रहे हो. ऐसे ही ऑन द अदर साइड, बिना नीज को खोले, यू
go on the other side and come back. No, stop exercising. Ruchir, stop exercising. Just check करना है अभी. This is not the exercise. Magic will come. ठीक है? Check कर लिया which is less and which is more. Okay? दोनों साइड पे चेक करना है अभी. Everybody is done? Good. Now what you have to do is rotate and then side bend. Rotate करके side bend करना है और 5 times breathe करना है. Can you breathe with me 5 times? Take a deep breath. आवाज आनी चाहिए. Breathe out में. सांस लीजिए गहरा. 5 times. 5 times. 2 more. And come back. And rotate on the other side. And now side bend. And 5 times breathe out. अच्छे से ब्रीथ करिए. इनहेल अच्छे से करिए. Okay, come back, relax. Are you ready for magic? Are you ready for magic? Okay, now check again. Rotate again, and you will. I can guarantee you can go a lot more than what you were able to go before. Yes or no? Yes or no? Ruchi, did you try? Yes? Good. Great. Yes? See, simple चीज, बिल्कुल इतनी सिंपल चीज है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? एक सिंपल चीज से अगर हमारी स्पाइन की मोबिलिटी बेटर हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि अब हमारे उस एरियाज के अंदर जो मोबाइल हुए उसमें सर्कुलेशन बेटर नहीं होगा? आपका पेन प्रॉब्लम कम नहीं होगा? होगा ना? Yes or no? तो इतनी छोटी छोटी चीजें एक मिनट के अंदर हो जाती हैं और उससे इतना डिफरेंस मिलता है, तो हम क्यों नहीं कर रहे? So we have to come to a point where we have to start taking care of our body. Yes or no? Yes or no? Good. So these are very small things, but if we take care of our breathing, हमारी movement, हमारी flexibility, इससे हमारी body के अंदर सिर्फ हीलिंग रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, बट हम अपनी बॉडी का टेक केयर करने के बाद हमारे आसपास के लोगों का भी टेक केयर कर सकते हैं. यस और नो? इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट, वी कैन स्टिल टेक केयर ऑफ आवर पीपल, एंड दैट इज वेयर माय गोल इज. बिकॉज व्हेन मैं जब पेशेंट्स को देखता हूँ, मेरे पेशेंट्स हमेशा अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं. मेरे पेशेंट हमेशा बोलते हैं कि मेरे को सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मैं अपनी फैमिली का ध्यान नहीं दे पा रहा या नहीं दे पा रही, और मैं उन पे डिपेंडेंट हो रही हूँ, या वो मेरा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, एंड दे फील गिल्टी अबाउट इट. हाउ मेनी ऑफ यू फील द सेम? यस, यू फील द सेम लॉट ऑफ टाइम्स, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट डजंट हैव टू हैपन लाइक दैट. इफ यू जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आप एक्सरसाइज करिए, अपना ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल गेट इन प्लेस. सो दिस ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पार्ट, व्हिच इज द सपोर्ट इटसेल्फ, द लाइफस्टाइल इटसेल्फ. हम कितना सो रहे हैं, हम कितना सपोर्ट ले रहे हैं. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स हमें लगता है कि अगर हम जाके अपने लिए फिजियोथेरेपी कराएंगे या अपने लिए किसी न्यूट्रिशनिस्ट को रख लेंगे तो और बर्डन बढ़ेगा. बट आप ये नहीं समझ रहे कि अगर आप सपोर्ट और एक मेडिकल एडवाइस लेंगे, प्रोफेशनली जाएंगे, तो आप अपना ध्यान और अच्छे से ले सकते हैं, और उससे आप अपनी लाइफ को पेन फ्री करके और अपने आसपास के लोगों की लाइफ को भी और इजी कर सकते हैं. Yes or no? And I'm telling you from my experience that solutions are there. Why we have to suffer? जब वहां पे जब solutions available है और मैं आपको एक छोटे से एक सेशन के अंदर आपको डिफरेंस दिखा सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली अगर आप हेल्प रिसीव करेंगे और लेंगे तो आपकी लाइफ क्यों नहीं बेटर होगी? बिल्कुल बेटर होगी. आप यू डोंट हैव टू लिव विद दिस पेन. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ये सॉल्यूशंस हैं और बिना दवाई लिए. ऑफ कोर्स फॉर कैंसर एंड ऑल यू नीड टू टेक मेडिकेशन, यू मस्ट टेक इट, बट फॉर एवरी स्मॉलेस्ट थिंग अगर आप पेन मेडिसिन खा के पेन को हटा रहे हैं, then that's not the right way. Would you agree with me or not? Good. Let me share you. So these were the three things. Okay, we discussed the mind कि हम अपना स्टेट चेंज करके हम अपनी बॉडी के अंदर जैसे हम फील कर रहे हैं उसको बदल सकते हैं विद इन 1 minute, ओनली बाय डूइंग 10 yeses and 10 breathing outs. Yes or no?
बॉडी के अंदर हम सिर्फ अपने आर्म मूवमेंट से और सिर्फ ईयर रोलिंग से हम अपनी स्पाइन के अंदर मोबिलिटी और मूवमेंट ला सकते हैं, जिससे भी बॉडी का एनर्जी लेवल बेटर होगा, हीलिंग रिस्पॉन्स बेटर होगा, पेन कम होगा। थर्ड थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि हमें अपने लाइफस्टाइल में स्लीप का, न्यूट्रिशन का और मेडिकल हेल्थ का खुद से ध्यान देना है, उससे भागना नहीं है, because there is help available and we should take that support, and it is for the good of you, for the good of others. Yes or no? Good. Can I share a small story with you? In 2012 I was in the UK and I came back from UK. मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था और जब मैं वापस आया within few months my dad was diagnosed with tongue cancer. एंड मैं अपने करियर के बहुत अर्ली लाइफ में था, एंड इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, क्योंकि मेरे ऑफिस से बहुत प्रेशर था जहाँ पे मैं काम करता था, और साथ में माय डैड हैड द कैंसर एंड एवरीथिंग, तो उनको हॉस्पिटल ले जाना, कीमोथेरेपी कराना, एंड ही हैड अबाउट 2 सर्जरीज बैक टू बैक दैट, एंड उनका एक पार्ट ऑफ द टंग हैज टू बी रिमूव्ड एंड एवरीथिंग हैपेंड. सो I was so much early in the career कि मैं automatically a complete adult भी नहीं था उस समय, and I had to manage my job, I had to take care of my father and all of those things happened. The best part of that journey was that I became a lot more closer to my dad that time, क्योंकि मैं already कुछ सालों से UK में था and I was not able to spend quality time with him. And जब वो incident हुआ, that actually brought my relationship a lot more closer. मेरा relationship उनके साथ इतना quality time में convert हो गया. I was taking care of him and he shared so many of his stories कि उन्होंने मेरे साथ अपने experiences of life और इतना share किया उस moments में, और मैंने उससे इतना सीखा कि मैं उससे पहले पूरी life में कभी नहीं सीख पाया. तो हमें कभी कभार लगता है कि एक disease like cancer is end of life, or it has given us lot of suffering, but हम उसका brighter side कभी कभार miss out कर जाते हैं. So I wanted to share this story with you that we should not see it only as negative. Lot of times even something like this happens and suffering is happening, we are still able to give lot of love, affection and care for our family. And they feel good about it. क्योंकि मैं जब अपने फादर को हेल्प कर रहा था and I felt कि I am so glad कि मैं यूके में नहीं हूँ, मैं इंडिया में हूँ और उनके साथ हूँ. मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि फैमिली इज एवरीथिंग. मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मैं अपने अर्ली स्टेज में, अभी मैं बहुत यंग हूँ, लेकिन मेरे डैड ने मुझे इतनी सीख दी उस समय कि मैं एक एडल्ट की तरह अपनी लाइफ को ले पाया. मैं उनसे उस समय सीख पाया, मैंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ली, और ये सब उन्होंने मुझे हेल्प किया while he was suffering with cancer. So all of these things, when we look at things कि हम अपने एस्पेक्ट से क्या देखते हैं और बाकियों के एस्पेक्ट से क्या देखते हैं, all of these things happen, we feel कि ये तो बहुत बड़ी चीज है और बहुत सारी सफरिंग है हमारे लिए और हमारे घर वालों की, बट हमेशा ऐसा होता नहीं है. और ये कभी कभार एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि आप अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड से और अपने बच्चों से और क्लोज आ पाए, और अगर वो आपको हेल्प कर रहे हैं और आपकी टेक केयर कर रहे हैं, तो आपको उनसे दूर नहीं भागना, उनको अलाउ करना है टू रिसीव, बिकॉज मे बी उनके लिए बहुत अच्छा है और उनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है. You can relate to this, yes or no? By the way, I helped him so much, and last 1 month, एक month पहले he had to take another surgery क्योंकि उनको relapse हो गया. So last 1 month पहले I took him to the hospital again. He had another surgery and everything, and I went through that process again. And he was on the feeding tube for 1 week, and बहुत चीजें हुई. And again I was there with him, and again he's come back to his normal life. वो हर रोज सुबह खुद से एक्सरसाइज करते हैं, and he's doing everything. By the way, since 2012 जब मैं यूके से वापस आया और आज तक कोविड के अलावा एक भी साल नहीं हुआ कि हम बाहर घूमने ना गए हो. वी गो आउटसाइड इंडिया, अब्रॉड जाते हैं हम घूमने, एंड इस साल भी गए थे और अगले साल फिर से अभी प्लान कर रहे हैं.
in spite of having cancer, in spite of having that suffering. Why? Because our normal life does not stop. हमारे बच्चों के साथ, हमारी families के साथ, फिर whatever suffering is going on, we have to do it for them. And I would like to thank all of you people, because आप भी वो काम अपने बच्चों के लिए, अपनी family के लिए कहीं ना कहीं already कर ही रहे हो. Yes or no? Give me a thumbs up if you can relate with this. Yes? Good. I would, before we start Q&A, I would like to, as a vote of thanks also, and because I have learned a lot from my dad, so I just wanted to share this picture with you also. This is from last year from Croatia, and these are the fond memories that I've created with him over a period of time. And every year we go out and we spend quality time, irrespective of how fatigued he is, how his energy levels are, but he's always there with me. He's always been a support, and I'm still learning from him every day. So I think we all as a family, as everything, we have a role to play, whether in cancer or without cancer. And as much as suffering you are going through, your family also feels a lot of care for you, a lot of love for you. So you should allow them to receive that. Yes? Good. So yeah, this was me, and thank you very much for hearing out my story. I just wanted to share so you could relate with this and you can understand that you are playing, even when you are suffering, आप अभी भी एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए, and you are giving them opportunity to love you and they can care for you and you are caring for them back. अगर आपको उनका ध्यान ऐसे ही लेते रहना है, देते रहना है उनको, then आपको अपना ध्यान पहले देना है. दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग. आज के सेशन का बिगेस्ट लर्निंग यही है कि अगर आप अपना ध्यान पहले नहीं दे रहे हैं तो आप उनका ध्यान कैसे दे पाएंगे, ये आपको आज सीखना और समझना है. And medical help and professional help like physiotherapist is there to help you. So take that help. Yes or no? Good. Thank you for hearing me out. We will take Q&A now. So you can raise up. Thank you, Dr. Akshay. Thank you, Dr. Akshay. Thank you so much for the amazing session. I will request everyone, अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर चाहिए तो प्लीज आप अपना हाथ रेज करिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे एंड आप डॉक्टर अक्षय से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपको वो जो भी सोल्यूशन हो सकता है वो दे सकते हैं ऑनलाइन. अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो कोई चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या अनम्यूट करके आप हैंड रेज करिए. हम चेतना जी, can you please unmute Minu Manojji? She wants to ask something. Chitna, can we mute Minu Manoj? Can we unmute Minu Manoj? She wants to ask a question. हाँ. मीनू जी, आप एक बार अपने आप को म्यूट करेंगे प्लीज, अनम्यूट करेंगे. Chitna, can you allow everyone to mute themselves, unmute themselves? Yeah, I think we can allow everyone to unmute if they want to. Let's not keep it to ourselves. Okay, Minu ji, can you try to unmute yourself? Minu Manoj ji? No, Chetna, she's unable to do it. Okay. मीनू जी, आप अपने टाइप कर सकते हैं क्या क्वेश्चन? एक बार आप टाइप कर दीजिए. डॉक्टर अक्षय, अगर आप म्यूट नहीं कर पा रहे आप टाइप कर दीजिए. अक्षय जी, डॉक्टर अक्षय will be taking the question. Anyone else who has some question can type in the chat box in the meanwhile.
But Dr. Akshay, it was a wonderful session. It was an amazing session. So much value that you have given the patients. I think these tips and tricks we are unable to identify, and you have beautifully provided everyone with such small tips and tricks. Thank you so much. Thank you so much from bottom of our heart. Thank you so much. And I think these are the things which can be taken care by the caregivers as well as the patient, and it can be helpful for both of them. Thank you so much. Yeah, most welcome. It was a great pleasure. I think because I'm just not coming from knowledge side. मैं सिर्फ अपनी knowledge से नहीं बोल रहा, मैं अपने experience से बोल रहा हूँ, जो मैंने अपने patients के साथ for more than 15 years spend किया है. They share their personal life with me. मुझको एक एक इमोशन समझ में आता है कि जब वो अपनी लाइफ से शेयर करते हैं उनको क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या फील होता है. On a personal level, in my own house, my dad has been suffering from this since 2012. तो मुझे एक एक एस्पेक्ट इस प्रॉब्लम्स और इस ऑब्स्टेकल्स और इन इमोशंस के बारे में एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, एंड दैट इज व्हाई व्हेन अनुज सेड दिस आई वाज कनेक्टेड इन द फर्स्ट गो कि I can definitely provide more value. I think Sushma ji is on unmute, so she can. Yes, डॉक्टर साहब मैं ये कह रही थी कि ये जो एक्सरसाइज आपने बताई है तो सबको फायदा करेंगी, जरूरी नहीं कि कैंसर पेशेंट हो या, ये तो सबके फायदे के लिए है. हाँ हाँ जी, बिल्कुल सबके फायदे के लिए. बट क्या होता है कैंसर पेशेंट में कभी कभार एनर्जी डाउन होती है, तो उनके लिए हम इतनी एक्सटेंसिव और बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइज नहीं डालते. हम सिर्फ बैठे बैठे सिंपल चीज करें पर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और आपको एकदम से आपकी स्टिफनेस चली जाती है. उसके लिए आपको बहुत हेवी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है. तो जब मैं अपने कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करता हूँ तो मैं एक ऐसी एक्सरसाइज डिवाइस करता हूँ जहाँ उनकी बॉडी पे प्रेशर कम से कम पड़े और रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा. बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई भी कर सकता है. हाँ जी, क्योंकि वो नेक की करके वो ईयर को करके नेक की उसी टाइम फर्क पड़ना शुरू हो गया था. लग रहा था कि मेरा लेफ्ट साइड में पेन है, तो लेकिन उसी टाइम थोड़ा रिलीफ हो गया. बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है जो स्पेसिफिकली जब मैं अपने पेशेंट के साथ काम करता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि इनको यहाँ पे मैं हेल्प करता हूँ इस एक्सरसाइज से. तो ऐसी बहुत एक्सरसाइजेज होती हैं, बट ये वाली मुझे लगा कि आज के सेशन के लिए सबको सही रहेगी और सबको पसंद रहेगी. तो बहुत अच्छा रहा. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू. एक बार दोबारा से एक्सरसाइज बता सकते हैं आप सब? आते हैं तो हमें लगता है कि स्टिफनेस है अगर नेक में, तो हम अपने कान को पकड़ के पीछे की तरफ घुमाएंगे. ठीक है, जब खींचेंगे और पीछे की तरफ घुमाएंगे, ऐसे 1 मिनट तक करेंगे तो हमारे जो मसल होती है, मांसपेशी होती है, उसके ऊपर एक कवर होता है, उसको हम फेशिया बोलते हैं, वो खुल जाता है. ये साइंस है इसका. जब वो खुल जाता है तो आपका ये जो कान है ना, ये यहाँ पे नेक के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपके नेक के अंदर मूवमेंट एकदम से खुल जाएगा. तो जितना भी आपको स्पाइन के अंदर, नेक की स्पाइन के अंदर स्टिफनेस फील हो रहा है वो चला जाएगा. ऐसे आप इसको मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं दिन में और कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, थैंक यू डॉक्टर अक्षय, थैंक यू सो मच. एक आप चैट बॉक्स में मीनू मनोज जी ने क्वेश्चन डाला है, प्लीज अगर आप देख सकते हो तो. yeah. So Meenu Manoj is saying, my father-in-law is suffering from blood cancer and his treatment is started at early stage. I want to ask, he got black spot on his thigh after starting cancer medicine. If these spots are normal or something else? Yes. So with lot of blood cancer issues, there is lot of difference in transition in the blood context, consistency. ठीक है, हमारे अंदर ब्लड के अंदर कभी कभार lot of small blood capillaries होती है. अगर वो ब्लड कैपिलरीज बहुत थिन हो जाएं और वो ब्रेक कर जाएं तो वो एक ब्लैक स्पॉट दे देते हैं, विच इज कंप्लीटली एज गुड एज कि किसी को ब्रूज पड़ जाता है जब वो कहीं टक्कर मार देता है, राइट. तो उसके अंदर भी हमारी जो स्मॉल कैपिलरीज होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं. लेकिन जो हमारी ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग एवर. तो वो क्या करती है कि ब्लड कैपिलरीज अपना दूसरा गुच्छा बना के कहीं और से ब्लड को हेल्प कर देती है. तो जो ब्लैक स्पॉट्स और वो जो ब्रूजिंग थिंग्स है वो अपने आप चली जाती है. तो आप अगर आपको लगता है कि ब्लैक स्पॉट्स और ये चीज बहुत बहुत ज्यादा आ रही है, देन यू हैव टू बी कंसल्टिंग योर ऑन्कोलॉजिस्ट दैट वे.
बट अगर ये एवरी नाउ एंड देन थोड़ा बहुत है तो ये बहुत एक नॉर्मल चीज है ब्लड कैपिलरीज की थिनिंग की वजह से। गुड, हेलो। थैंक यू। यस, हेलो अवनीता, Yes, हाउ आर yes, यू? Avneeta ji. प्लीज um बताइए। एक क्वेश्चन है, लाइक एक हमारे ना लेफ्ट हिप में अपर साइड थोड़ा सा पेन होता है एंड देन इट एक्सटेंड्स टू द होल लेग, मतलब लेफ्ट लेग में पूरे में एक्सटेंड होने लगता है वो, और कभी नस्टिचना टाइप्स हाँ जी, लोअर बैक में वो चीज होती है, तो हाँ, उसके तो लिए क्या किया जाए? आपको नमनेस और टिंगलिंग भी है, पैर के अंदर सेंसेशन भी जाता है, झंझनाहट सी या सुनपन? नहीं, सुनपन तो नहीं है। ठीक है, सिर्फ पेन जा रहा है लेग के आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? पीछे की तरफ, नहीं आगे की हिप, तरफ, नीचे। मतलब हिप जैसे शुरू तो पीछे की तरफ से होता है, हिप की साइड से, और फिर वो आगे की साइड नीचे जो काफ मसल्स के नीचे फॉर फ्रॉम ऑन द फ्रंट साइड वहां पे होता है। हेलो। ठीक है, तो इस चीज का सबसे पहले जरूरी है, एक्सरसाइज नहीं बताई जा सकती, हमारी ऑडियंस भी उनके लिए एप्लीकेबल होता है कि दर्द क्यों हो रहा है। और सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं। तो अगर आपकी बैक के अंदर स्टिफनेस है और वो किसी नर्व को प्रेस कर रही है, तब आपको एक रेडिएटिंग पेन डाउन द लेग मिलता है। तो सबसे पहला आपको जो सॉल्यूशन जिस जिस तरफ आपको जाना चाहिए कि आपको अपनी लोअर बैक से स्टिफनेस हटानी है। तो थोड़ी बहुत जो भी जनरलाइज बिना रिस्क की बैक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है वो आपको हेल्प कर सकती हैं। लेकिन अगर ये नर्व का पेन है तो आप आगे बेंडिंग फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपके पेन का बढ़ने का चांस ज्यादा है। तो आप बेंडिंग फॉरवर्ड अवॉइड करिए अभी के लिए। और बैक की स्टिफनेस को हटाने के लिए जैसे ये साइड बेंडिंग की एक्सरसाइज हो गई या एक्सटेंशन की पीछे जाने की एक्सरसाइज हो गई, ये सेफर एक्सरसाइजेज हैं आपके लिए। पर आप बेंडिंग की अभी नहीं करेंगे। और मेरी एडवाइस आपको ये है कि अगर आपको ये परसिस्टेंट पेन है और नीचे जा रहा है तो यू कैन सी अ फिजियोथेरेपिस्ट। आई ऑल्सो टेक दिस कंसल्टेशन ऑनलाइन। तो मैं अनुज को बोलूंगा वो ग्रुप में मेरी डिटेल्स डाल देंगे, ताकि इफ एनीबडी नीड्स एन ऑनलाइन कंसल्टेशन दे कैन जस्ट डू इट। एंड देन माय टीम आल्सो टेक्स केयर कि वो ऑनलाइन सेशंस कराते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, जो कि सिर्फ हेल्थ और फिटनेस के लिए, कि आपकी बॉडी मूवमेंट में रहे। तो मेरी टीम ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिर्फ एक्सरसाइजेस कराती हैं जिससे आपकी बॉडी मोबाइल रहे। हम आपको इंटेंसिव एक्सरसाइज नहीं कराते, बट आपकी बॉडी हील ज्यादा अच्छे से करे, आपकी मसल स्ट्रेंथन हो, इसके लिए माय टीम टेक्स केयर ऑफ एक्सरसाइजेस। तो हम एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। एंड आई विल टॉक टू अनुज, वी विल प्रोवाइड something like a very special discount or something for Medlama audiences who can just avail this. Okay, I will send you something. You can send it later. Thank you, Amita ji. थैंक यू। Most welcome. डॉक्टर अक्षय, एक क्वेश्चन लखन लाल जी ने पूछा है। वो कह रहे हैं कि मुझे फेफड़ों का कैंसर है, कोई एक्सरसाइज है उसके लिए जो मुझे करनी चाहिए? Yes, so एक something like a pursed lip breathing has proven कि एक ऐसी breathing exercise है जो बहुत simple है और बहुत effective है, but लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं। उनको लगता है कि इससे क्या होगा, करेक्ट? तो हमारे अंदर क्या होता है कि जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, कि हमारा जो तो एवरी रखना है हमारे चेस्ट के ऊपर। लंग्स को नहीं फुलाना, चेस्ट को नहीं फुलाना, पेट को फुलाना है। उसके बाद लंग्स को फुलाना है बिना पेट को छूए। उसके बाद पेट से पहले सांस छोड़ना है, अब पेट अंदर की तरफ जाएगा, और फिर चेस्ट से सांस छोड़ना है माउथ से। तो हमने ब्रीथ इन नोज से करना है दोनों टाइम, एब्डोमेन के लिए और चेस्ट के लिए माउथ से। ओके, फिर चेस्ट से। सो इनहेल फ्रॉम एब्डोमेन एंड चेस्ट, exhale from abdomen and then chest. Let's do it together. Inhale, abdomen में
Then इसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक ब्रीदिंग ऑल्सो. लिम्फेटिक क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हटाने का काम करता है. तो लिम्फेटिक की अगर हम ब्रीदिंग करते हैं तो ये ओवरऑल हमारी लंग की एक्सपेंशन भी करेगा और हमारी बॉडी से टॉक्सिसिटी हटाएगा. सो इट्स अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज. डोंट टेक इट कि अरे ये सिर्फ एक नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है. एक छोटी सी ये एक पर्टिकुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी बॉडी की फुल इम्यूनिटी के लिए वेरी 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 इफेक्टिव. So you should do this also. Good. I hope. Thank you so much. Thank you so much. So हाँ, लखन जी, I hope डॉक्टर अक्षय ने बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चन का आंसर बताया एंड आई थिंक बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी काफी इससे हेल्प मिलेगा. तो लास्ट क्वेश्चन आई थिंक हम ले लेते हैं. अवनीता जी का एक क्वेश्चन है, एनी एक्सरसाइज फॉर अ हेल्दी लिवर? यस. सो एक बहुत सिंपल है. आई एम अ होलिस्टिक हेल्थ कोच. तो मैं फिजियोथेरेपी के अंदर सिर्फ मसल्स और जॉइंट्स के लिए काम नहीं करता, बिकॉज आई एम सीइंग लॉट ऑफ कैंसर पेशेंट्स. सो आई एम हेल्पिंग देम इन लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो. सो व्हाट डू यू डू? यू मेक अ कप. हाथ से एक कप बनाना है आपको. ठीक है. उसके बाद आपको एक हाथ ऊपर करके, so when you're tapping, so when it's on the right side, you make a left hand cup and you tap it on the lower lip. तो इसको gently आप इसको ऐसे tap कर सकते हैं. It shouldn't hurt. Make a cup and just tap it on the right lower lip. You can do it for like 30 times. इससे क्या हो रहा है कि हम circulation बढ़ा रहे हैं liver पे. So automatically the blood circulation to the liver improves and all. Automatically your digestion and things can improve also. This also is part of a lymphatic exercise. By the way, we call it as a tapping technique. तो हम इसको टैप कर रहे हैं with a cupping tapping technique, and this helps your liver to help more, and इससे वाइब्रेशन क्रिएट होता है, सर्कुलेशन बेटर होता है, perform more better. They can do, and they can feel more digestion and things like that also. Good. I hope it helped. Yes. Thank you, Avanita ji, for asking this question. So that, and thank you, Dr. Akshay, for answering all our questions so patiently. You have been wonderful. Thank you for so much, so many tips and tricks. I hope सब इसको यूज करें. I hope सब इससे फायदा उठाए. ये आज का जो हमने 1 घंटा निकाला है 11 से 12 का, I hope ये एक शिफ्ट लाए हम सबकी लाइफ में. And thank you, Dr. Akshay, for giving this 1 hour to our community. We are grateful to you. I hope it helps everyone. Thank you, everyone, for coming to this webinar. See you next Sunday. See you, everyone, next Sunday. And I hope all the best and happy Sunday to everyone. Thank you. Okay. Thank you, everyone. Bye-bye.